Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑन स्टोमाटा एनाटॉमी एंड साइटोलॉजी. स्टोमाटे एनाटॉमी एंड साइटोलॉजी. जो स्टोमाटा का एनाटॉमी और साइटोलॉजी कैसा होता है उस पर हमें थोड़ा चर्चा करना है. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, water deficit and CO2 concentration, effect of light, water deficit and CO2 concentration and temperature on stomatal movement along with the underlying mechanism. And what are the effects of light? Light की क्या effect है? What are the effects of water deficit? जब water deficit रहता है उस समय क्या effect होती है उसकी? CO2 concentration का क्या effect है? What are the effects of temperature? इन चारों की क्या effect है stomatal movement पे? So there are the two parts of the question and we have to address both the parts. And this question was asked in 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर ऑफ यूपीएससी सीएसई. जो यूपीएससी सीएसई का 2023 का एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आ चुकी है. एंड इट हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो. स्टोमाटा एनाटॉमी और साइटोलॉजी तो नहीं पर ओपनिंग और क्लोजिंग पे, इफेक्ट ऑफ लाइट, वाटर डेफिसिट, CO2 कंसंट्रेशन, ये सब पे प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुका है. एंड आई हैव आल्सो डिस्कस्ड दिस थिंग्स इन माय क्लास, जो कि मैंने लेक्चर्स लिए थे जिसको जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल मिल जाएंगे. उसमें भी मैंने सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यू कैन आल्सो रेफर दैट. Now let's see how we approach the answer. Let's start the answer and you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको खुद से भी करने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखने का प्रयास करोगे उतना इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में. सो प्लीज ट्राई टू राइट these types of answers by yourself also. So now let's start the answer. Let's see how we approach the answer. तो सबसे पहला आपको समझना होगा क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट इज एनाटॉमी एंड साइटोलॉजी. Anatomy is nothing but we have to explain the structure. What is the structure of stomata? And cytology, that is cells present, about cells. ठीक है. And we have to write about cells. What are the cells present in stomata? तो first of all, what is stomata? आप चाहो तो इसको you can introduce your answer by just defining in a line what is stomata. तो stomata is a specialized pores that are present on the surface of leaves that facilitate gas exchange. तो स्टोमाटा क्या है? These are nothing but simply a specialized pores that are present on the surface of leaves that facilitate gas exchange. So what is its main function? To facilitate gas exchange. So this is stomata and I think you all know about it. Now let's move to the question, that is anatomy and cytology. So simply what you can do here, you can draw the structure of stomata showing all the cells. And if you want you can also write something 1-2 lines of what is important cells. जैसे आप चाहो तो guard cells के बारे में you can write, stomatal pore you can write. So simply you have to just explain the structure, okay, in simple words. Okay, तो क्या होता है स्टोमाटा में? अगर आप सबसे पहले देखो तो two important cells are the guard cells and the stomatal pore. Guard cells are this bean shaped. ये bean shaped cell आपको दिख रहा है जो ऐसे करके है. This bean shaped cell, these two are the guard cells. इन्हें हम लोग guard cells बोलते हैं. और इसके बीच का जो स्पेस है, this is called stomatal pore. ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? stomatal pore. So I hope you understand. और यही stomatal pore allows us the exchange of gases between plant and atmosphere. Allows the exchange of gases. Guard cells, simply it is the bean shaped cell around that stomatal pore and it facilitate the opening and closing. अब क्या होता है when guard cells become flaccid, when guard cells become flaccid and turgid, जैसे अगर वो फूलते हैं तो they support opening, when they become turgid. So this way उस पे जो जिस तरह से K प्लस इनफ्लक्स होता है, आउटफ्लक्स होता है, अगर इनफ्लक्स हो रहा है तो वो the guard cells will open the stomatal pore, और इफ्लक्स होगा उससे बाहर जाएगी तो they will close it. So that is how guard cells work. ठीक है. और भी cells such as nucleus is present here in the guard cell. Subsidiary cells that is covering the stomata. There is thick inner wall. Sorry, not is this is a thick inner wall.
We have epidermal cells, that is outer sides of cells, that is epidermal cells. These ones are epidermal cells. Chloroplast is present in guard cells. You can see the chloroplast. That is why it is looking green. That is why due to chloroplast our lips look green. Vacuole is obviously present here. ठीक है, तो these are some of the cells which you can express. ठीक है, जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो. This will and that is enough for anatomy and cytology. अगर आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दे हो, then I think you have nicely explained the anatomy and cytology. Now let's move to the second part of the question, that is effect of light, water deficit, temperature and CO2 concentration. So first of all light. तो लाइट का क्या इफेक्ट होता है ऑन स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटल मूवमेंट. तो क्या होता है, लाइट स्टिमुलेट्स स्टोमेटल ओपनिंग. इट स्टिमुलेट्स स्टोमेटल ओपनिंग. ठीक है, हाउ. अब अच्छा पहले देखो, अब स्टोमेटल ओपनिंग होगा तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है. दैट इज फोटोसिंथेसिस हो रहा है. फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो स्टोमेटल ओपनिंग से क्या हो रहा है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ CO2. ठीक है, दैट इज CO2 इज द प्लांट, द लीव्स आर टेकिंग इन द CO2. ठीक है, तो ये हो गया. आप देखो ये कैसे काम करता है. जब लाइट होता है तो लाइट एक्टिवेट्स द प्रोटॉन पंप. इट एक्टिवेट्स प्रोटॉन पंप. जब प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है तो क्या हो रहा है, K+ एंड वाटर का इनफ्लक्स हो रहा है. That is, if suppose this is guard cell, the K+ and water, K+ ions and water are getting into the guard cells. और जब ये होता है तो टर्गर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज, और जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो दिस विल लीड टू द स्टोमेटल ओपनिंग. ठीक है, अगर लाइट से क्या हो रहा है, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो रहा है, उससे K+ और वाटर इनफ्लक्स हो रहा है. जब भी इनफ्लक्स होगा K+ एंड वाटर तो ओपन होगा. जब इफ्लक्स होगा, दैट इज K+ एंड वाटर विल कम आउट, देन देयर विल बी क्लोजिंग. व्हेन K+ एंड वाटर विल गो इनसाइड, दैट इज इनफ्लक्स, देयर विल बी ओपनिंग. ओके, तो इससे क्या हो रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है और स्टोमाटा ओपन हो रहा है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लाइट. नाउ सेकेंडली व्हाट हैपेंस इन वाटर डेफिसिट. वाटर डेफिसिट मींस ड्राउट कंडीशंस. दैट इज कि वाटर की कमी है. ठीक है, ड्राउट कंडीशन में क्या हो रहा है, ये देयर विल बी स्टोमेटल क्लोजर. व्हाई देयर विल बी स्टोमेटल क्लोजर, टू रिड्यूस वाटर लॉस. टू रिड्यूस, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव वाटर डेफिसिट एंड द स्टोमाटा विल बी ओपन, देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर. सो ड्यूरिंग वाटर डेफिसिट स्टोमाटा विल बी क्लोज टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन. जो भी ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस हो रहा है उसको ये रोक रही है. इट इज रिड्यूसिंग द वाटर लॉस. ओके, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव वाटर डेफिसिट. तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी वाटर डेफिसिट होता है तो ABA इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड इज प्रोड्यूस, और जब एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो इससे K+ इफ्लक्स हो रहा है. देयर इज इफ्लक्स ऑफ K+. because the influx था, that is K+ was going inside, here there we have efflux, K+ is coming inside, और K flux और प्लस वाटर इनफ्लक्स. K flux है वाटर इनफ्लक्स दोनों का. K flux और वाटर इसमें अंदर जा रहे थे तो ओपन हो रहा था, इसमें K plus और वाटर बाहर आ रहे थे. इट विल लीड टू स्टोमेटल क्लोजर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. एफ लाइट का क्या इफेक्ट रहा, वाटर डेफिसिट का क्या इफेक्ट रहा. Thirdly, we have CO2 concentration. When we will have higher CO2 concentration, तो जब हाई CO2 रहता है, so what it will do? It will promote stomatal closure. जब हाई CO2 रहेगा तो हमारा क्या होगा, स्टोमाटा क्लोज होगा. It will promote stomatal closure to conserve water. To conserve water. अब इसमें क्या होता है, जब भी CO2 एवेलेटेड रहता है, when we have high CO2, तो ये सेंसिटिविटी ऑफ गार्ड सेल्स को रिड्यूस कर देता है. इट reduces sensitivity of guard cells, hence guard cells are not able to open, और इस तरह क्या होता है, क्लोज जाता है स्टोमाटा. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ CO2 कंसेंट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर.
अब टेम्परेचर क्या होता है, व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर अगेन स्टोमाटा विल बी क्लोज, हाई टेम्परेचर में भी स्टोमाटा क्लोजर ही होगा. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू कंजर्व वाटर टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस. इसमें वो होता है हाई टेम्परेचर जब भी होता है तो इट लीड्स टू एक्टिवेट एबीए प्रोडक्शन, दैट इज एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन एक्टिवेट हो जाता है और दैट विल लीड टू स्टोमाटल क्लोजर. ठीक है, बिकॉज एब्सिसिक एसिड के प्रोडक्शन से क्या होगा, जो भी उसके अंदर वाटर और के प्लस आयन है उसका फ्लक्स होगा गार्ड सेल से, और जब ये फ्लक्स होगा बाहर आएंगे तो गार्ड सेल विल लीड टू क्लोजर. ठीक है, क्लोज हो जाएगा गार्ड सेल. और जब इनफ्लक्स होगा जैसे कि लाइट के टाइम हो रहा तो उससे क्या हो रहा है, गार्ड सेल्स विल ओपन, गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. जो भी चीज मैंने आज समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीज. कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हो. इसीलिए देखो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर में हॉट और ड्राई इन्वायरमेंट्स में आप क्या देखते हो, स्टोमाटा हमेशा क्लोज ही रहता है टू कंजर्व वाटर. अगर वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली प्लांट मिट रहा है. तो ऑब्वियसली जब ये हॉट टेम्परेचर होगा, ड्राई कंडीशन होगा, वाटर डेफिसिट होगा, CO2 कंसेंट्रेशन हाई होगा तो स्टोमाटा विल बी क्लोज ओनली. और जब लाइट अच्छी लाइट पड़ेगी तो स्टोमाटा विल ओपन. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. जितनी भी चीजें मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. If there is any doubts you can comment. For any queries do comment, and please do like, share and subscribe because it motivates us to make more such videos for you. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाए. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.